Reading from Srimad Bhagavatam 1.8.28. Prayers by Queen Kunti and Parikshit saved. Manye tvam kalamesha mishanam anadi nidanam vibhum samam charantam sarvatra bhutayam bhutanam yanmitah kalihi. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. My Lord, I consider your Lordship to be eternal time, the supreme controller, without beginning and end, the all-pervasive one. In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissensions between living beings are due to social intercourse. Purport. Kunti Devi knew that Krishna was neither her nephew nor an ordinary family member of her paternal house. She knew perfectly well that Krishna is the primeval Lord who lives in everyone's heart as the Supersoul, Paramatma. And as the name of the Paramatma feature of the Lord is Kala, or eternal time. Eternal time is the witness of all our actions, good and bad, and thus resultant reactions are destined by Him. It is no use saying that we do not know why and for what we are suffering. We may forget the misdeed for which we may suffer at this present moment. But we must remember that Paramatma is our constant companion and therefore he knows everything, past, present, and future. And because the Paramatma feature of the Lord Krishna destines all actions and reactions, he is the supreme controller also. Without his sanction, not a blade of grass can move. The living beings are given as much freedom as they deserve, and misuse of that freedom is the cause of suffering. The devotees of the Lord do not misuse their freedom, and therefore they are the good sons of the Lord. Others who misuse freedom are put into miseries destined by the eternal Kala. The Kala offers the conditioned souls both happiness and miseries. It is all predestined by eternal time. As we have misery is uncalled for, so we may have happiness also without being asked, for they are all predestined by Kala. No one is therefore either an enemy or friend of the Lord. Everyone is suffering and enjoying the results of his own destiny. This destiny is made by the living beings in course of social intercourse. Everyone here wants to lord it over the material nature, and thus everyone creates his own destiny under the supervision of the Supreme Lord. He is all pervading and therefore he can see everyone's activities. And because the Lord has no beginning or end, he is known also as the eternal time Kala. So now, after uh, Kunti Maharani has explained how Krishna is the property of impoverished, in last two verses, कुंती महारानी ने यही चर्चा की कि भगवान अकिंचन जो है, जिसको किसी और भी भौतिक आशा या भौतिक संपत्ति के ऊपर किसी प्रकार का भरोसा नहीं है, केवल भगवान पर ही भरोसा है, ऐसा व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त है, भगवान उससे प्रेम करते हैं। अब यहाँ पर कुंती महारानी ये बता रही हैं कि किस प्रकार भगवान ईश्वर है, परम ईश्वर है, यानी सब कुछ कंट्रोल। ईश्वर का मतलब संस्कृत में होता है कंट्रोलर, और भगवान परमेश्वर के रूप में इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा को कंट्रोल करते हैं, उसकी डेस्टिनी, उसके भाग्य को कंट्रोल करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम रोबोट हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारी सारी जितने भी कार्य हैं, अच्छे या बुरे, परमात्मा हमारे सभी कार्यों को जानते हैं, बिकॉज प्रत्येक जन्म में परमात्मा आपके साथ प्रत्येक शरीर में गए हैं। परमात्मा हर जीवात्मा के साथ रहते हैं। तो ही नोस के अभी आपको क्या सजा मिलने वाली है या क्या आपको खुशियां मिलने वाली है। तो दैट्स वाई कृष्ण जो है, उनके जो भक्त होते हैं वो भगवान के अच्छे अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि वो भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, और इसीलिए वह जनरली सभी प्रसन्न रहते हैं। और जो अभक्त होते हैं वो अपनी मर्जी से कार्य करते हैं और अपने सुख के लिए कार्य करते हैं। तो जो अपने सुख के लिए केवल कार्य करता है वो निश्चित रूप से अन्य जीवात्माओं को दुख अवश्य देगा। तो ऐसे व्यक्ति को फिर सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें आप सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। हमारे कर्म हमारे बंधन में बांधते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो।
अच्छे कर्म हमें सोने की चेन की तरह है, सोने की चेन से आपको बांधा गया है। तो समस्या क्या है? बंधन समस्या है। चेन सोने की हो या लोहे की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पाप करने वाले को जैसे लोहे की चेन से बांधा गया है, और पुण्य करने वाले को जैसे सोने की चेन से बांधा गया है। तो वास्तव में चेन सोने की हो, चेन चाहे लोहे की हो, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर बाउंड। बट कृष्णा's devotee is not bound, because Krishna's devotee does not do karma or sin. He does अकर्मा। अकर्मा, भगवत गीता में भगवान कहते हैं अकर्म क्या है? वो ऐसे कार्य जिनका बंधन नहीं बनता। तो काल भी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कार्य नहीं, कोई निगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। काल उस व्यक्ति के लिए निर्माण करता है कि वो रास्ता, कि कैसे वो भगवान के धाम वापस जा सकता है। तो भगवान स्वयं काल है, कालो अस्मि, भगवान कहते हैं गीता में। सो हियर वी अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, और इनका ना आदि है ना अंत है, और सर्वव्यापी है भगवान। एंड बिकॉज ये जो कर्म के नियम हैं इतने दृढ़ हैं कि कोई उनसे बच नहीं सकता, इसीलिए भगवान इक्वल है सबके लिए। भगवान ने ये नियम सबके लिए बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने मेरे लिए बनाए हैं, आपके लिए नहीं बनाए, या आपके लिए बनाए मेरे लिए नहीं बनाए हैं। प्रत्येक जीवात्मा के लिए नियम बने हैं। सो हम इस बंधन में अपने ही कर्मों के कारण फंसते रहते हैं। यस। नेक्स्ट। प्रभुपद नावेद कश्चित् भवं किश्चितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं नाजस्य कश्चित् दयि ततोऽस्कहिश्चित् दैश्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्. Translation. O Lord, no one can understand your transcendental pastime, which appears to be human and so far misleading. You are no specific object of favor, nor do you have any object to envy. People only imagine that you are partial. Purport. The Lord's mercy upon the fallen souls is equally distributed. He has no one as the specific object of hostility. The very conception of the personality of Godhead as the human being is misleading. His pastime appear to be exactly like human being, but actually they are transcendental and without any string of material contamination. He is undoubtedly known as a partial to his pure devotee, but in fact he is never partial, as much as the sun is never partial to anyone. By utilizing the sun rays, sometimes even the stones become valuable, whereas a blind man cannot see the sun. Although there are enough sun rays before him, darkness and light are of two opposite conception. But this does not mean that the sun is partial in distributing its ray. The sun rays are open to everyone, but the capacities of the receptacles of differ. Foolish people are think that devotional service is devotional service is flattering flattering the Lord to get a special mercy. Punctually, the pure devotee who are engaged in transcendental loving service of the Lord are not mercantile community. The mercantile house render service to someone in exchange of for value. The pure devotee does not render service unto the Lord for such exchange. Such that and therefore the fully mercy of the Lord is open for him. Suffering man
needy man, uh, in, in inquisitive person, or a philosopher make a temporary connection with uh, the Lord to serve particular purpose. When the purpose of served, there there is no more relation with the Lord, and mm, a suffering man, if he is pious at all, plays to the Lord for his recovery. But as soon as the recovery is over, the most of the cases, the suffering man no longer cares to keep any connection with the Lord. The mercy of the Lord is open for him, but he is reluctant to receive it. That is the difference between a pure devotee and a mixed devotee. Those who are completely against the service of the Lord are considered to be abject darkness. Those who ask for Lord's favor only a time in necessity are partial recipients of the mercy of Lord, and those who are 100% engaged the service of the Lord are fully recipient of the mercy of the Lord. Such partial in receiving Lord's mercy is relatively to recipient, and it is not due to the partial of the all merciful Lord. When Lord descendants to this material world by his all merciful energy, he plays like a human being, and therefore it appears that the Lord is partially to his devotee only, but there is not a fact. Despite such a apparent manifestation of partially, his mercy is equally distributed. In this battlefield of Kurukshetra, all persons who are died in the fight before the presence of the Lord got salvation without the necessary qualification, because death before the presence of Lord purifies the passing of soul from the effort of the all saints, and therefore the dying man get a place somewhere, the transcendental abode. Somehow or other, if someone puts himself open the sun rays, he is sure to get requisite benefits both by heart and by ultraviolet rays. Therefore, the conclusion is that the Lord is never partial. It is wrong for the people in general to think him as partial. तो ये श्लोक देखिए, शिल प्रभुपाद ने श्लोक में पूर्ण यही स्पष्ट किया है कि किस प्रकार भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। सूर्य का प्रकाश क्या किसी के साथ पक्षपात करता है? क्या सूर्य का प्रकाश यह मना कर देता है कि मैं इस व्यक्ति को मिलूंगा, इस व्यक्ति को नहीं मिलूंगा? ऐसा सूर्य का प्रकाश नहीं करता। जिस व्यक्ति को सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना है, वो सूर्य के प्रकाश में जाकर उसका उपयोग कर सकता है। आप अगर सोलर पैनल लाएंगे, सोलर पैनल लाकर आप सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का आप उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके सभी पेड़ पौधे अपनी उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अनेक रत्नों का निर्माण हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर जो करना चाहता है वो करता है। सूर्य का प्रकाश सभी के लिए उपलब्ध है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा सभी के लिए उपलब्ध है। जो भगवान की कृपा का जिस प्रकार से उपयोग करना चाहता है, उस प्रकार से भगवान की कृपा का उपयोग कर लेता है। और जो नहीं करना चाहता है वो यह कहता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। वास्तव में भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान से जो आपने संबंध बनाते हैं, किस स्तर के संबंध बनाते हैं, किस भाव से संबंध बनाते हैं, उस पर निर्भर करता है कि भगवान से आपको कितना रेसिप्रोकेशन मिलने वाला है। क्योंकि जैसा आप उनके साथ संबंध बनाएंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि कुरुक्षेत्र में जो लोग भक्त नहीं थे, और वो भक्त ना होते हुए भी क्योंकि भगवान के सामने उन्होंने अपने प्राण त्यागे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो उनको भी मुक्ति प्राप्त हो गई। तो किस प्रकार भगवान पार्शियल हो सकते हैं जब भगवान अपने अभक्त पर भी इतनी कृपा कर रहे हैं? तो वास्तव में भक्त जो होता है वो भगवान की पूरी कृपा का उपयोग कर लेता है। कृपा पूरे ब्रह्मांड में कृपा है भगवान की।
और भगवान ने किसी के लिए कमी नहीं रखी है। लेकिन कौन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए वास्तव में प्रयास कर रहा है, उसको मिल जाती है कृपा। सबके लिए है कृपा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ स्पेशल कृपा है या आपके लिए कुछ स्पेशल कृपा है और मैं आपसे बैठ के जलूं, इनको तो बताओ भगवान ने कितना दे दिया, मुझे क्यों नहीं देते हैं। ये बात मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि वो व्यक्ति ले रहा है, वो व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, हाँ लाओ भगवान लाओ। हम क्या है, हम खड़े हैं वहीं पे। करेक्ट। कोई कोई व्यक्ति है बारिश में भीग रहा है, हम कह रहे हैं बारिश में हम भी भीगना चाहते थे लेकिन हमें पता नहीं क्यों, हमने तो छाता लगाया हुआ, छाता तो हमने ही लगाया हुआ है बारिश से बचने के लिए, तो भगवान की कृपा बरस रही है। अब आप छाता लगा के खड़े हैं तो भगवान की कृपा कैसे गिरेगी। तो वास्तव में आप किस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भगवान मेरे को एक बढ़िया पोस्ट पोजीशन दिला दे, मुझे यहाँ का मुख्यमंत्री बना दे, तो भगवान वो कर देंगे। एंड आप उसके बाद भगवान को भूल जाइए, भगवान कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान आपसे डिमांड नहीं करते हैं। भगवान आपसे डिमांड नहीं करते, लेकिन भगवान ये कहते हैं भगवत गीता में कि जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है। भगवान की जो भक्ति करता है वो स्वाभाविक है। आपसे कोई प्रेम करता है, ऑटोमेटिकली आप तो उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो भगवान की भक्ति सभी के लिए ओपन है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि नहीं नहीं ये प्रेम करेगा ये प्रेम नहीं करेगा, तुम प्रेम नहीं करोगे वो प्रेम करेगा केवल, ऐसा भगवान ने नहीं कहा है। हमने कहा है हम नहीं प्रेम करेंगे भाई, हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे। भगवान तो कह रहे हैं कि प्रेम करो, तो सबको कह रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं एक व्यक्ति को कह रहे हैं। तो हम अपना संबंध भगवान से अगर एक व्यापारी की तरह बनाएंगे, भगवान ये दे दो मुझे और मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, या मेरी ये बीमारी ठीक कर दो, उसके बाद फिर हम भूल जाएं भगवान को, जैसे ही बीमारी ठीक हो गई फिर जाएंगे ही नहीं। तो जो भौतिक इच्छा के साथ भगवान के पास जाता है, सबसे बड़ी कमी उसकी यही होती है कि वह व्यक्ति भौतिक इच्छा पूर्ण होने के बाद भगवान को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है। क्या, ठीक है, हो गई पूरी इच्छा। इसको कहते हैं एब्यूज करना, यूज एंड एब्यूज। उपयोग करके फेंक दिया, जब जरूरत पड़ी तब हाथ जोड़ने पहुंच गए। ये भक्ति नहीं है, ये क्या है, एक व्यापार है। व्यापारी क्या करता है कि मुझे इतना पैसा दो, मैं ये सामान आपको दे दूंगा, वो व्यापारी है। और भगवान के पास जो भक्ति करता है, भक्त कौन होता है, वो मांगता नहीं है। वो कभी ये नहीं मांगता भगवान ये दे दो वो दे दो, पूरा संसार दे दो, मुझे ये बना दो, मुझे ये नौकरी दिलवा दो, मुझे ऐसी पत्नी दिलवा दो, मुझे ऐसा पति दिलवा। ये भगवान से जो मांगता है वो वास्तव में व्यापारी है। तो यही प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें क्या बनना है। आप व्यापारी बनेंगे तो कभी भी भगवान के करीब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो मर्जी आप ले ही नहीं रहे हैं भगवान की, आप उनका यूज कर रहे हैं। राइट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन व्हाट कैपेसिटी वी वांट टू मेक रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि प्योर डिवोटी और मिक्स डिवोटी में जो डिफरेंस बताया है वो यही बताया है। As soon as the recovery is over, in most cases, the suffering man no longer cares to keep any connection with the Lord. Mercy of the Lord is open for him, but he is reluctant to receive it. That is the difference between a pure devotee and a mixed devotee. So we don't have to become mixed devotee. मिश्र भक्त नहीं बनना है, शुद्ध भक्त बनना है। हमारे अंदर कोई अमलगमेशन नहीं होना चाहिए, शुद्ध भक्त हो जाना चाहिए। तो भगवान इसीलिए जो लोग रोते रहते हैं कि तुम्हारा भगवान ऐसा है तुम्हारा भगवान वैसा है, अरे भाई वो तुम्हारा भी भगवान है, भगवान तो सबके भगवान है। मेरा भगवान नहीं है, तुम्हारा भी भगवान है। जो वो अपने भक्तों को दे रहे हैं, जैसे पांडवों पे कृपा कर रहे हैं, कुंती महारानी पे कृपा कर रहे हैं, क्या हम पे नहीं कर सकते। अरे हम लेना ही नहीं चाहते उनकी कृपा, हम उसके लिए प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं। कृपा तो मिल रही है उनकी, सबको मिल रही है उतनी ही कैपेसिटी, उतनी ही तीव्रता से मिल रही है। अब कोई उसको ले रहा है कोई उसको नहीं ले रहा है, सिंपल। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू बिकम। डू यू वांट टू बिकम लाइक अ मर्चेंट, और यू वांट टू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो श्रीमद् भागवतम कॉम्प्रोमाइज नो लेस देन बीइंग अ प्योर डिवोटी। श्रीमद् भागवतम आपको प्योर डिवोटी से नीचे आने के लिए नहीं कहती है, वो शुद्ध भक्त बनने से नीचे नहीं कहती है। ये श्रीमद् भागवतम की विशेषता है।
बाकी किसी भी लिटरेचर में आप जाएंगे, अभी पुराणों में जाएंगे, अन्य देवताओं के देखेंगे, तो प्रत्येक स्तुति का कुछ ना कुछ भौतिक फल ही मिलता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम भौतिक फल की बात नहीं करती, श्रीमद् भागवतम शुद्ध प्रेम की बात करती है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहते हैं। कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। ये गंदगी होती है भगवान से कहना है कि भगवान मुझे ये दे दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। और या फिर भगवान की भक्ति करना और मन मन में सोचना शायद ये भक्ति करने से मन में शांति आ जाएगी, ये भी भौतिक है। ये भी सोचना भौतिक है। यही भागवतम की विशेषता है। ये समझना भी बड़ा मुश्किल है कि बहुत मन की शांति आ जाएगी, जीवन में समृद्धि आ जाएगी, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभिर एन मानव पुमान। कुंती महारानी तो कह रही है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसके पास ये सब वस्तुएं पहुंच जाती हैं उसके लिए शुद्ध भक्ति कर पाना, क्योंकि उसको मद आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो ये सब एस्पायर जैसे ही हम करने लगते हैं, भगवान दे देंगे। भगवान मना नहीं करते, भगवान आपको जबरदस्ती शुद्ध भक्त बनाने के लिए, आपका स्क्रू टाइट करने के लिए नहीं बैठे हैं आज इसको शुद्ध भक्त बनाऊंगा। भगवान तो जो आप चाहते हो वो दे देते हैं। इसीलिए भगवान तो बड़े कृपालु हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि आपको जबरदस्ती आपको शुद्ध भक्त नहीं बनाना चाहते। ऐसी कृपा केवल भगवान का एक शुद्ध भक्त ही कर सकता है। इसीलिए गुरु के रूप में जब भगवान आते हैं, स्वयं गुरु का जो रूप धर के जो आते हैं, वो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। गुरु ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का ऐसा प्रतिनिधि है, जो वो आपको जबरदस्ती आपके जीवन में प्रवेश करता है और जबरदस्ती आपको फोर्स करके आपको शुद्ध भक्त बनाता है। भगवान कभी किसी को शुद्ध भक्त नहीं बनाना चाहते। भगवान कहते हैं अपनी इच्छा से करो, यथेच्छसी तथा कुरु। अर्जुन को भी लास्ट में भी कहा जैसी इच्छा है वैसा करो। मैंने सिर्फ बता दिया तुमको, भगवान ने पूरा भागवतम दे दिया, भगवान ने आपको भगवत गीता दे दी, सब कुछ दे दिया, फिर भी कह रहे यथेच्छसी तथा करो, जैसी इच्छा है वैसे करो। लेकिन जब भक्त आता है भगवान का, जब गुरु आते हैं, कहते हैं मूर्ख, ये नहीं करना है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्त को ऐसे करना चाहिए, अगर तुम्हें शुद्ध भक्ति करनी है तुम्हें ये बनना पड़ेगा। भगवान के साथ सौदा नहीं करना है, भगवान के साथ व्यापार नहीं करना है। तो ये शुद्ध भक्त की कृपा है, जो भगवान से भी ज्यादा बड़ी है। भगवान से भी ज्यादा बड़ी भगवान के भक्त की कृपा होती है, क्योंकि वो आपके जीवन में प्रवेश करके आपको बदलने का प्रयास करता है। भगवान जबरदस्ती किसी को बदलने का प्रयास नहीं करते। भगवान आपको बता देते हैं, ये स्क्रिप्चर्स हैं, ये लिखा हुआ है, सब ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ये कर्म करोगे ये फल मिलेगा, ऐसे भक्ति करोगे तो ये फल मिल जाएगा, वैसे भक्ति करोगे तो वो फल मिल जाएगा। सब बताया हुआ भगवान ने। लेकिन भगवान आपको फोर्स नहीं कर रहे, अब आप अपनी इच्छा से कीजिए। इसीलिए गुरु आवश्यक है। गुरु बताता है कि भगवान ने ये सब बताया है, आपको इसमें से ये चुनना है। गुरु ये बताता है, ये गुरु वो भी बता देते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं भगवान ने, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, सब दिया हुआ है। लेकिन चुनना क्या है? भक्ति योग अंतिम यही है। इसी से ही शुद्ध भक्त बनोगे, नहीं तो फिर तड़पते रहोगे इस भौतिक संसार। ओके, दैट्स व्हाई गुरु हैज गिवन अस chanting of Hare Krishna Mahamantra, which can purify all of us in this age of Kali Yuga. Let us all chant together Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।